Hello students, good morning. This is Shalini. In previous class you studied about stars, constellations, galaxy and planets. Now today we start with satellites. On a clear night sky we all can see the moon. The moon and the earth are closely related. The moon revolves around the earth. The moon is a natural satellite of the earth. Satellites are the celestial bodies that revolve around the planets. The planets pull them around by their gravitational force. For instance, the earth, which is a planet, pulls the moon by its gravitational force. Only some planets of solar system have satellites. Our earth has only one satellite, moon. Planets like Mercury and Venus do not have any satellite. The planet Jupiter has 67 satellites. So what is satellite? Satellite is the celestial bodies. सैटेलाइट क्या है? सैटेलाइट सेलेस्टियल बॉडी होती है जो कि प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करती है. प्लैनेट्स हैव ग्रेविटेशनल फोर्स. प्लैनेट्स के पास ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो उन्हें अपने अराउंड खींचता है ताकि वो उसके अराउंड घूम सके. कुछ प्लैनेट्स के पास सैटेलाइट होती है, कुछ के पास नहीं होती है. अर्थ के पास ओनली वन सैटेलाइट है, दैट इज़ मून. मर्क्यूरी एंड वीनस प्लैनेट के पास एक भी सैटेलाइट नहीं है. एंड द जुपिटर हैज़ 67 सैटेलाइट्स. ओके, सैटेलाइट्स आर ऑफ टू टाइप. वन इज़ मैन मेड और आर्टिफिशियल एंड सेकंड वन इज़ नेचुरल. Oh, what is artificial satellite? These are spacecrafts launched by scientists from Earth to draw information regarding celestial bodies. Some Indian satellites are INSAT, EDUSAT, IRNSS, GST and Cartosat 2C. आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होती है? जो कि साइंटिस्ट बनाते हैं स्पेसक्राफ्ट्स. वो अर्थ से उन्हें यूनिवर्स में भेजते हैं ताकि वो रिगार्डिंग सेलेस्टियल बॉडीज इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें. यू सॉ द मूवी मिशन मंगल. उसमें हमने देखा है वो लोग स्पेसक्राफ्ट बनाते हैं, उसको लॉन्च करते हैं. तो दिस वन इज़ आर्टिफिशियल सैटेलाइट. ओके, इसके लिए ये सैटेलाइट मार्स पे भेजी गई थी. इसके लिए हमें 2015 में स्पेस पायनियर अवार्ड भी मिला है. नेक्स्ट वन इज़ नेचुरल सैटेलाइट. नेचुरल सैटेलाइट मीन्स ये ऑलरेडी नेचर में प्रेजेंट है, जिसे हम मून कहते हैं. ऑल प्लैनेट्स एक्सेप्ट मर्क्यूरी एंड वीनस हैव मून. सिर्फ मर्क्यूरी वीनस के पास एक भी मून नहीं है, बाकी सभी के पास मून है. अर्थ के पास एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, दैट इज़ मून. Now second one is asteroids. We can observe some small bodies in between the two planets Mars and Jupiter. Though they are in between the two planets, they actually revolve around the sun. These bodies are called asteroids. This place where many asteroids are found is called asteroid belt. Asteroids are tiny rocks that range in size from a few meters to a few hundred kilometers. Scientists are the opinion that these asteroids are parts of planet that exploded in the past. So asteroids क्या होते हैं? Asteroids tiny rocks होती है जो कि मार्स और जुपिटर टू प्लैनेट्स के बीच में प्रेजेंट होती है. ये भी सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. एक प्लेस होती है जहाँ पर ये एस्ट्रोइड्स, बहुत सारे एस्ट्रोइड्स रिवॉल्व करते हैं, दैट इज़ एस्ट्रोइड बेल्ट. Look, this is Mars and this is Jupiter. Okay, and now ये tiny rocks क्या एक बेल्ट बना हुआ है पूरा. ओके, जिसको बोलते हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट. ये एस्ट्रॉयड बेल्ट्स कुछ मीटर से लेके फ्यू हंड्रेड किलोमीटर्स इतनी इनकी साइज़ होती है. ओके, 100 किलोमीटर्स तक इनकी साइज़ होती है, इतने ये बड़े होते हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज़ मेट्रॉइड्स. There are small pieces of rocks which revolve around the sun. They are called meteoroids. These rocks sometimes come near the Earth's atmosphere. The gravitational force of the Earth pulls them towards it. As a result, they tend to fall on the Earth. But as these rocks come near the Earth's atmosphere gives the friction. As a result, they heat up and burn, which is visible from the Earth. Meteoroids क्या होते हैं? ये small pieces of rocks होते हैं. ये भी सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. ये एस्ट्रॉयड से छोटे होते हैं. एस्ट्रॉयड टाइनी रॉक्स होती हैं और ये उनसे भी छोटे होते हैं, लाइक पत्थर जैसे.
एस्ट्रॉयड जो होते हैं वो सिर्फ सन के अराउंड ही रिवॉल्व करते हैं, लेकिन मीटरॉइड्स जो होते हैं वो कभी कभी अर्थ के एटमॉस्फेयर में भी एंटर कर जाते हैं। तो अर्थ के एटमॉस्फेयर से उन्हें फ्रिक्शन लगता है। फ्रिक्शन एक टाइप का फोर्स होता है, ऑपोजिट फोर्स होता है। ओके, यू सॉ योर टॉय कार। जब आप अपनी टॉय कार से खेलते हैं तो आप उसको पुश करके छोड़ देते, तो एक टाइम पे वो जाके रुक जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एक ऑपोजिट फोर्स होता है जो कि अर्थ की तरफ से लगता है, तो कोई भी चीज़ चलने के बाद रुक जाती है। ओके, तो यही इनके साथ भी होता है। अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो उससे टकराते हैं और कभी कभी वो बर्न भी हो जाते हैं, जिसको हम इसलिए इन मीटरॉइड्स को शूटिंग स्टार भी बोलते हैं। आपने सुना होगा टूटता हुआ तारा, वो एक तारा नहीं होता, वो मीटरॉइड्स होते हैं। ओके, these meteors which burn up due to friction with Earth's atmosphere are called shooting stars. Sometimes a meteor may not burn completely and fall on the Earth's surface causing a hollow. कभी कभी ये पूरी तरीके से बर्न नहीं हो पाते और ये अर्थ के सरफेस पे गिर जाते, जिसकी वजह से वहाँ पे एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। नेक्स्ट वन इज कॉमेट्स. It is an icy body of gases and dust with a long tail that orbits around the sun. The tail develops when it comes nearer to the sun and the light is reflected on it due to force of solar wind. For some reason, comets do not necessarily collide into planets or asteroids. Comets क्या होते हैं? ये गैस और डस्ट से बने हुए होते हैं। ओके, इनकी टेल भी बन जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ सन। ये जैसे ही सन के पास जाते हैं वहाँ से उनकी लाइट रिफ्लेक्ट होती है सोलर विंड की वजह से। नेक्स्ट वन इज सोलर सिस्टम. वी हैव स्टडीड अबाउट होल फैमिली ऑफ सोलर सिस्टम. सो सोलर सिस्टम में क्या क्या होते हैं? सन होता है, ये ऑल प्लैनेट्स होते हैं, एस्ट्रॉइड्स होते हैं, मून्स होते हैं, मीटरॉइड्स होते हैं, कॉमेट्स होते हैं. ऑल द प्लैनेट्स दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड मूव अराउंड द सन ऑन अ फिक्स्ड एलिप्टिकल पाथ नॉन एज ऑर्बिट. सारे ही प्लैनेट अपने फिक्स पाथ पर सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, जिसको हम ऑर्बिट कहते हैं. The unevenly shaped rocks known as asteroids form a belt between Jupiter and Mars. So ये unevenly shaped rocks जो होती है, जो एस्ट्रॉइड्स होती हैं, ये जुपिटर और मार्स के बीच में एक बेल्ट फॉर्म करती है, जिसको बोलते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट. Meteoroids can be seen in Earth's atmosphere where they begin to burn up. The solar system too is always in motion and orbits in the Milky Way galaxy. It completes one orbit in 26,000 years, which is also known as the cosmic year. So ये मीटरॉइड्स एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में 26,000 ईयर्स लगते हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉस्मिक ईयर. अवर सन इज़ ए मीडियम साइज स्टार पॉपुलरली नॉन एज येलो ड्वार्फ. सन जो होता है वो मीडियम साइज स्टार होता है और उसको हम येलो ड्वार्फ भी बोलते हैं. इट इज़ द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ. ये सबसे क्लोज होता है अर्थ के. एंड लार्जेस्ट बॉडी सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम के सेंटर में सिचुएटेड होता है. The sun is made of extremely hot gases formed from nebula that are the clouds of dust and gases. It is nearly perfect sphere of hot plasma with internal convective motion that generates a magnetic field. It is by far the most important source of energy for life on earth. सन किससे बना हुआ होता है? हॉट गैसेस से बना हुआ होता है, जिसमें डस्ट और गैसेस होती है, क्लाउड्स. ये हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है एनर्जी का लाइफ के लिए अर्थ पे. और लास्ट वन इज अर्थ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लैनेट. वी हैव लर्नड अबाउट द सोलर सिस्टम, इनर एंड आउटर प्लैनेट्स एंड द अदर बॉडीज लाइक सैटेलाइट्स, एस्ट्रॉइड्स एंड मीटरॉइड्स. द अर्थ इज अ पार्ट ऑफ दिस वास्ट यूनिवर्स. इट इज़ इन द सोलर सिस्टम विच इज़ पार्ट ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी. Our Earth is an extraordinary planet. It is different from other planets. Perhaps it is the only planet which is the habitat of so many living beings. The other planets do not have favorable conditions for the living beings to survive there. Even the only satellite of Earth, that is Moon, does not have favorable conditions for the existence of living beings. For example, atmosphere of other planet does not have enough oxygen, which is must for living beings to survive. So, Earth extraordinary planet क्यों है? बिकॉज जो लाइफ है हमारी वो सिर्फ अर्थ पे ही पॉसिबल है. जितनी भी फेवरेबल कंडीशंस होती है लाइक ऑक्सीजन, वाटर, गैसेस एंड ऑल, जो भी हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी है वो सिर्फ अर्थ पे ही है.
सम प्लैनेट्स आर टू हॉट लाइक मर्क्यूरी एंड वीनस. वीनस एंड मर्क्यूरी जो प्लैनेट होते हैं बहुत ज़्यादा हॉट होते हैं, एंड यूरेनस एंड नेपच्यून जो प्लैनेट होते हैं बहुत ज़्यादा कोल्ड होते हैं. Okay, our Earth has all the necessary condition for the survival of living beings. Atmospheric shields that envelopes the Earth has life-supporting gases such as oxygen. Its ozone layer does not allow harmful ultraviolet rays to reach the Earth's surface. अर्थ के जो ओजोन लेयर होती है वो हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करती है, वो उन्हें अलाउ नहीं करती कि वो अर्थ सरफेस पर आ सके. ओके, सो नाउ दिस इज मीटियोर्स, सन एंड एस्ट्रॉइड्स. मीटियोर्स क्या होती है? स्मॉल रॉक्स होती है जो कि सन के अराउंड रिवॉल्व करती है. सम मीटियोर्स एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड बर्न ड्यू टू फ्रिक्शन विद अर्थ एटमॉस्फेयर. कुछ मीटियोर्स होते हैं वो अर्थ के एटमॉस्फेयर पर एंटर करते हैं और वहाँ पर वो जल जाते हैं. और बर्निंग मीटर्स कॉल्ड अ शूटिंग स्टार. तो जो बर्निंग मीटर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? शूटिंग स्टार बोलते हैं. समटाइम मीटियोर्स डू नॉट बर्न कम्प्लीटली एंड फॉल ऑन अर्थ क्रिएटिंग होलोज. कुछ टाइम क्या होता है, मीटियोर्स पूरी तरीके से नहीं जल पाते हैं और वो अर्थ पर गिर जाते हैं, जहाँ जिसकी वजह से वहाँ पे एक गड्ढा बन जाता है. सन इज़ द स्टार इन मिल्की वे गैलेक्सी. सन क्या होता है? वो भी एक स्टार है. इट इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ हॉट गैस गिविंग आउट लाइट एंड हीट. वो एक बहुत बड़ी गैस, गर्म बॉल होती है, ह्यूज बॉल होती है जिसमें गैस होती है जो हमें लाइट और हीट देती है. सन अलॉन्ग विद प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, एस्ट्रॉइड्स एंड मीटियोर्स फॉर्म द सोलर सिस्टम. सन के साथ साथ प्लैनेट, सैटेलाइट, एस्ट्रॉइड्स एंड मीटियोर्स जो भी सोलर सिस्टम को बनाते हैं. ये सोलर सिस्टम के सेंटर में होता है. एस्ट्रॉइड जो होती है वो रॉक्स होती है जो कि सन के अराउंड रिवॉल्व करती है. ये सिर्फ मार्स और जुपिटर के बीच में होती है और ये भी प्लैनेट का पार्ट है.